Welcome students. Today's topic is trick of finding order of reaction from their rate constant units. In many exams we have to face such type of problems. Then rate constant or the value of K is given. From that we have to find out the order of reaction. It is not every time possible within few minutes to solve out that numerical and to find out the order of reaction. So here I am giving you some tricks. So before that we must know the rate of different order and their units. What is order of reaction and what is their units? See, order of reaction is already explained in earlier slide. So here we are telling about different orders and their units. So first we are taking is first order reaction. In first order reaction, the reaction is of type when A is the reactant and it gives you product. When A is reactant and it gives you product, so what will be its rate constant? This means that here the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. Now see here, keep this thing in mind. In the first order reaction, rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactant. If the concentration is doubled, the rate of the reaction is doubled. Now what is its unit? This is from where we have taken this R is your, this rate is your R, K change in concentration. This we can also write that K is equal to R upon A, and see the value of R is, the unit of R is concentration time inverse. This is the unit of R. This same value we are putting here. The unit of R we are putting, it is concentration T minus, or T can be anything, can be your second, can be your minute, anything. Concentration T minus 1 upon this concentration. So what it becomes? This and this is cancelled, so this becomes your T minus 1. T minus 1. So the unit of first order is T minus 1. So now next we are going for second order. Second order, if our reaction is 2A gives you product, so what will be its rate? It will be like this. What does this mean? When this concentration is doubled, suppose if this, now see beta, see here clearly, यदि हम इस A को यदि हम डबल करेंगे तो इस रेट का क्या मीनिंग हो जाएगा? ये 4 टाइम्स हो गया है ये. नाउ सी हियर, when the concentration is doubled, when the concentration means this A. See, this is the, when this A is doubled, what R, this R becomes square of A. So this R is 4 times. Keep this thing in mind. In second order, this A is doubled, then this becomes 4 times. Now suppose it is not every time possible कि हमारा reactant एक ही हो,
हो सकता हो हमारे पास दो रिएक्टेंट हो, तब क्या होगा एट दैट टाइम. नाउ सी हियर अनदर कंडीशन वी आर टेकिंग. हम मान लेते हैं हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, दोनों ही अलग अलग है. ए और बी दोनों को हमने ऐड किया एंड वी हैव गॉट प्रोडक्ट. देन व्हाट विल बी इट्स रेट. सी बिकॉज हियर इट इज़ वन. स्टोइकोमेट्रिक जो है इसका ये भी वन है, तो यहाँ भी वन होगा, ये भी वन होगा. अब कैसे सेकेंड ऑर्डर कैसे हुआ. अब देखो बेटा, हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो क्या हो गया, ये यहाँ भी वन है, ये भी वन है, तो दिस वन प्लस वन बिकम्स योर टू. सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना. अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं, तब क्या होगा. नाउ सी व्हाट विल हैपन. अब हम यहाँ पे किसी भी एक को, या ए को या बी को, किसी भी एक को यदि हम डबल करेंगे. नाउ सपोज हमने ए कंसंट्रेशन को डबल किया है. जब हम ए कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने बी को चेंज नहीं किया है. अब हमने ए को चेंज नहीं किया, वी आर चेंज डबलिंग बी. देन अगेन रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डबल. नाउ सपोज इफ़ बोथ आर डबल्ड. अब हमने क्या किया, दोनों को ही डबल कर दिया. इफ़ दे दिस ए एंड बी बोथ आर डबल्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना, 4 टाइम्स. इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स. नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट. See from here we are taking R is equal to K A raised to power 2. So the K will be here, K will be R upon A square. So this becomes R upon A square. What is R here, concentration T minus 1 upon concentration square. Concentration square, this C and this is cancelled, so it becomes, this concentration will go. अब क्या बचा बेटा यहाँ पे, T minus 1 upon concentration. इसको concentration को ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ये concentration minus 1 और T minus 1. Got it. Now we are going for, this is our second order unit, and this T minus 1 is your first order unit. Now we are going for third order. Now third order, now suppose if our अब हमने क्या किया है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो सारे सेम है. क्या हुआ, 3A गिव्स यू प्रोडक्ट. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, R इक्वल्स K A क्यूब. यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, व्हेन कंसेंट. अब यदि हम इस A को चेंज करेंगे, यदि हम इस A को डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3, इसका क्यूब हो जाएगा बेटा ये. सी इट अगेन, यदि हम इसको डबल करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम योर 9 टाइम्स. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल, R इंक्रीजेस 9 टाइम्स. गॉट इट. नाउ अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग रिएक्टेंट लेके रिएक्शन करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ आवर रिएक्शन इज टू A plus B. This is giving you product. अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R will be equal to K A raised to power 2 and
V। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तब भी ये चेंज होगा और इसको चेंज करेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। और किस तरह का चेंज होगा? नाउ सी, इफ़ A इज़ डबल, यदि हम इस A को डबल करेंगे, बिकॉज अब इसका क्या है, इस पर 2 की पावर है, यदि इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम डबल करते हैं और इसको कुछ नहीं करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। क्यों हो जाएगी? इसके कारण, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं है। नाउ अब हम क्या करें, A और B दोनों को ही डबल कर दें। सॉरी, पहले जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर था, जब हमने इसको डबल किया तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अब इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इफ़ वी आर डबलिंग दिस, तो जो चेंज इसका होगा वही चेंज इसका होगा। सो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर। नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट? its unit will be R is equal to, from here we are taking K A raised to power 3। अब इसका हमको K निकालना है तो क्या K क्या हो जाएगा बेटा, R upon A Q equal to concentration T minus 1 अपॉन concentration raised to power 3। दिस विल यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, T minus 1 अपॉन concentration 2। दिस becomes your concentration minus 2 and T minus 1। दिस इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पर क्या होगा। नाउ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पर हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं। रेट इज इक्वल टू व्हेन K लाइक दिस। कोई सी हमारी रिएक्शन है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, जो कंसंट्रेशन पर कोई चेंज नहीं है, देन व्हाट विल बी इट। यदि इस तरह की कोई कंडीशन आती है व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट? यूनिट विल बी, सी वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, R is equal to K A0, so K will be R upon A0। 0 means what? 0 means 0, so this is R की वैल्यू हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, concentration T minus 1 upon concentration raised to power 0, so this becomes your so this becomes your, अब this is 0, no matter, so this becomes your concentration T minus 1, so this is your zero order reaction. See, these things we have studied was related to or in terms of concentration or time। अब हमको कोई यूनिट दे दी जाती है, कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, उसमें कहते हैं MLT, देन व्हाट विल बी इन दैट कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा, सी बेटा, MLT मीन्स मोल, लीटर एंड टाइम। नाउ व्हाट इज हेयर, वन माइनस n T minus 1, दिस इज द फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से किसी का भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दिस n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ
when n is equal to, when n is your 0, then what will happen? K is equal to m upon L 1 minus 0 t minus 1. So what it will become? This will become your 1 minus 0. दिस मीन्स कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी वैल्यू पर, तो ये क्या बन जाएगा? m अपॉन L 1 t माइनस 1. अब हम इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m L minus 1 and t minus 1. So this is for your 0 order. Now come for first order. Now when n is equal to first, means first order reaction, क्या हो जाएगी k की वैल्यू? This k will become your m upon L 1 minus 1 upon t minus, this is your formula. अब हम क्या करेंगे इसमें? 1 minus 1 will become 0. तो क्या हो गया बेटा? ये m upon L 0 t minus 1. तो ये क्या हो गया? This becomes your m 0 L 0 t minus 1 or t minus 1. Now for when n is equal to 2, k की वैल्यू क्या हो गई? m upon L 1 minus 2 t minus 1. This is your formula. ये सब आप उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं, बाकी आपने यहाँ पर और कुछ नहीं किया. यू हैव ओनली सॉल्व दिस. अब सॉल्व करके क्या हो गया? दिस भी 1 minus 2 becomes minus 1. m upon L minus 1 t minus 1 equals m minus 1 L goes up. ये minus 1 है L भी, ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा? 1 लिखिए, ना लिखिए कोई बात नहीं, t minus 1. Now when n is your 3 or third order reaction, again we are putting the value of n there in this formula. One minus 3 t minus 1. This is your formula. On solving this, m upon L minus 2. This becomes your minus 2 t minus 1. क्या हो गया? ये m minus 2, this L is minus 2. अब ये minus 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 2 t minus 1. This is your when n is equal to 3, when n is equal to 2, second order, when first order, and this is your 0 order. और फॉर्मूला बेटा आपका क्या होगा? k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n t माइनस 1. सिर्फ हम n की जगह पर 0 1 2 3 लिखेंगे, एंड n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ देयर इज वन न्यूमेरिकल हियर. कैसे करेंगे हम इसको? नाउ सी, इस तरह कोई सा आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया, उसमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई प्लस यूनिट भी दी है. इसको ध्यान से देखिए. इफ़ यूनिट इज़ गिवन, इस यूनिट ने ही आपको आंसर दे दिया. अब हम क्या करेंगे? वंस वी हैव गॉट द यूनिट, हम क्योंकि MLT में है, दिस MLT में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन यूनिट ऑफ k और rate constant is itself a hint. यही आपको हिंट दे रहा है, ये यूनिट जो है यही आपको हिंट दे रहा है. तब आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सी द फॉर्मूला यूज्ड
K equal to m or mole upon liter 1 minus n t minus 1. दिस इज़ योर फॉर्म. इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MLT यूनिट्स. बस अब हम इसमें n के वैल्यू पुटअप करेंगे. 0 वैल्यू रख के देखेंगे, 1 की वैल्यू रख के देखेंगे, 2 की वैल्यू रख के देखेंगे और 3 के रख के देखेंगे. तो क्या होगा? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, सी we will get this answer. See here, this unit and this unit both are same. So for this, when this is the that reaction given, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? आपका योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3. Hopefully you are getting it. Thank you for watching this video.